So, am I audible to all of you and the online team? I just hope they're able to hear me. Okay, so actually मैंने कुछ prepare नहीं किया है. I don't very often get to interact with school students. I've been interacting with universities, NITs, IIT students. लेकिन स्कूल के स्टूडेंट से मिलना कम होता है. ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल इफ आई मिक्स द लैंग्वेजेस, तो बट एट द सेम टाइम ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वट एवर डिग्रीज आई होल्ड, जो आई डू हैव an engineering degree, I'm MPhil, I'm PhD, I'm currently teaching at the university. But out of all these degrees I have, the most cherished one I have is the degree in education. I did my degree in education in 1993-94 batch, Delhi University. It is called Bachelor of Education, B.Ed as it normally said. And CIE is the place which is considered one of the better institutions of teacher education in this country. But not because of this, but because the profound impact this particular degree has on me. आप मुझे जिस रूप में देखते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव मेरे ऊपर अगर किसी चीज़ का है तो ये जो टीचर एजुकेशन मैंने हासिल की थी उसी का है. So I'm really delighted to be among you. I'm actually thankful to the Shiv Nadar Foundation. I'm thankful to your school, Vidya Gyan, for giving me this opportunity. Thank you to Ila, thank you to the principal and all of you. With this, a small preface, मैं आप लोगों से मैंने कहा कि मैंने कुछ तैयार नहीं किया है क्योंकि मैं बहुत समय के बाद स्कूल के विद्यार्थियों से मिल रहा था. सो आई हैड दिस रियल इंटरेस्ट ऑफ टॉकिंग हार्ट टू हार्ट काइंड ऑफ थिंग. सो आपको आज की बातचीत में ऐसा लगेगा कि आई एम नॉट द सेल्फ विजेंद्र एज यू नो, द रोस्टिंग विजेंद्र हु लव eating aspirants in the breakfast, lunch and dinner. So I'll not be that. I'll be like your teachers, and I started my career as a school teacher. I taught in a school, I taught in the government school before I actually got into the university, and before that I had 3-4 years of my experience in CIE, not only as a student but thereafter I had around 3 years of experience working with the school kids, designing programs for the teacher education and things like that. We call it research worker. I was working with some the greatest mind in education our country has produced, Professor Yashpal, Professor Krishna Kumar, Professor Anil Sankopal. These are wonderful brains Indian education system has produced. Professor Krishna Kumar, for example, was the one who was member of the Yashpal committee, and the Yashpal committee was the committee that actually recommended education without learning without burden as that particular report is called. It is the same report on the basis of which schools like Vidya Gyan are based, that the learning should be fun, learning should not necessarily be burdened with a lot of just the heavy bags. Interestingly, जो यशपाल कमेटी की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट ने क्या किया कि इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट रिपोर्ट बच्चों के स्कूल बैग्स को एक्चुअली वे किया गया, तोला गया, देखने के लिए कि किस क्लास के बच्चों का एवरेज स्कूल बैग वेट कितना है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ड्रेडेड एक्सपीरियंस दे केम टू द कंक्लूजन कि वी नीड टू वर्क ऑन द एजुकेशन सिस्टम सो दैट द वेट ऑफ द
school bag, and it is not just the physical school bag, but metaphorically also. The education, the learning, the kind of burden it gives should be reduced. Learning should be fun. But what is interesting about it is that this particular report itself find out कि ये इतना बर्डन है क्यों बच्चे. और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों के बैग का वजन इसलिए ज़्यादा था क्योंकि उनको 12वीं क्लास में नीट एग्जामिनेशन देना होता था. आप समझ पा रहे हैं? ये माना गया कि आपको 12वीं में नीट और जेई देना है, वो उस समय जो भी उसका नाम था, इंजीनियरिंग और मेडिकल के आपको एग्जामिनेशन देने हैं, इसलिए आपको ज़्यादा आना चाहिए. ज़्यादा आना चाहिए तो उसका ट्रिकल डाउन क्या होता था कि छोटे बच्चों को ही, पहली क्लास के बच्चों को भी उनका करिकुलम बढ़ जा रहा था. They gave a very interesting anecdote in this particular report. यशपाल कमेटी रिपोर्ट इज इजीली अवेलेबल, आप उसे नेट पे देख सकते हैं. रिपोर्ट में बताया गया कि जापान में जो बच्चे हैं वो पहली क्लास में 1 से 20 तक की गिनती सीखते हैं. हमारे स्कूल के बच्चे, 91 में रिपोर्ट आई है, 91, 92, 93 की बात कर रहा हूँ, हमारे स्कूल के बच्चों को 100 तक की गिनती सीखनी पड़ती थी. और इसका फ़र्क ये पड़ा था कि जापानी बच्चों को अपने स्कूल में 1 से 20 तक की गिनती सीखनी है. इस कारण वो 1 से 20 तक की गिनती के हर नंबर के साथ दोस्त बन जाते थे. वो उसकी शेप के साथ, उसके आइडिया के साथ खेलते थे, ग्राउंड में भी वही बनाते थे, आपके एक्टिविटी रूम्स सब जगह वो वही कर रहे थे. हमारे बच्चों की चिंता क्या थी? उन्हें याद रखना था 69 और 79 में क्या अंतर है. कितनों को पता है 69 और 79 में क्या अंतर है? बिना ट्रांसलेट किए पता है? चलिए 12वीं क्लास में पता है, पर वहाँ पहली क्लास में पता होना था. तो वो प्रेशर क्या था? दैट प्रेशर वॉज बिल्डिंग, राइट, जिस वजह से देयर चाइल्डहुड वॉज नॉट फन. उनको ये समझ में आ रहा था कि कभी बड़े होकर कोई एग्ज़ाम पास करना है, ठीक है, जिससे उन्हें एक और इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलेगा, और इस वजह से उनका बचपन छिन रहा था. And Professor Yashpal was a beautiful, wonderful scientist this country has ever produced. As convener of that committee, realized कि अगर बच्चों को ऐसा रखा जाएगा तो इस देश का भविष्य बहुत अच्छा नहीं होगा. And that's why this wonderful report, Yashpal committee report, came out. I'm sure you already know why I'm telling you this. You're a smart student, right? If NEET JEE should not be allowed to kill the बचपन, आप लोगों के बचपन को, आपके चाइल्डहुड को मारने का हक अगर नीट जेई को नहीं दिया जा सकता तो किसी आईएएस को भी नहीं दिया जा सकता. नो यूपीएससी कैन बी अलाउड, राइट? नो यूपीएससी, नो इंस्टीट्यूशन कैन बी अलाउड कि वो हमारे बच्चों की पूरी पीढ़ी के बचपन को इस तरीके से नष्ट करें, राइट? सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस डिस्क्लेमर कि यस, पिछले 20, 22, 25 सालों से मुझे लगातार ये मौका मिला है दैट आई एम गेटिंग टू मीट, इंटरव्यू many candidates who cleared prelims and mains examination of the UPSC, right? जनरली द नंबर इज़ वी, अगर आप में से कोई मुझे फॉलो करता है तो हम लोगों ने कल ही इसे वाइंड अप किया है, इस साल का अपना सिविल सर्विसेज इंटरव्यू प्रोग्राम. एंड दिस ईयर वी इंटरव्यूड अराउंड 650-700 कैंडिडेट्स, एंड दैट्स बीन द नॉर्म एवरी ईयर. सो आई गेट टू मीट 500-600 aspirants who have cleared mains examination, and this sample size is huge. It's around 30% of the total. और कोई भी स्टैटिस्टिक्स, सोशल साइंसेस का व्यक्ति बताएगा कि 30% ऑफ द टोटल इज़ अ ह्यूज सैम्पल साइज, एंड आई एम डूइंग इट फॉर लास्ट 20 years. And on the basis of that, I do have some kind of experience, some kind of understanding which I'll be sharing with you. Despite that, my disclaimer stand. आप समझ पा रहे हैं? इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इसे समझिएगा. मैं लगातार ये काम करता हूँ जिसकी वजह से मेरे पास एक समझ है. आई डू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस, विजडम, एंड आई एम शेयरिंग दैट विजडम, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट विजडम itself, I am saying that
everyone everyone need not get into the trap of any examination. Forget about UPSC examination, any examination, NEET, JEE, UPSC, anything. Why? Because what you have worth far more than what you will get on the basis of any examination. This is the most vantage point, this is the most important thing to begin with. इससे हम बात को शुरू करेंगे. क्यों ये जरूरी है इसे इस तरीके से समझना? Because unfortunately we have built a system in which the pressure of higher classes, higher dreams, higher opportunities is always on the beginning part. आपको कभी बाद में कोई एग्जामिनेशन क्लियर करना है, उसके लिए आप इस समय के अपने लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं. And interestingly, when you actually arrive at that particular location where you have to face the music, you realize that those missing opportunities are costing you dearly. My experience is when I get this DAF is called, DAF is Detailed Application Form. आप लोग छोटे बच्चे हैं, परीक्षा के पूरे स्ट्रक्चर को अगर आप समझेंगे, the examination is like that. You have a preliminary examination, then you have a mains examination, right? And the basis of the mains examination mark, not the prelims one, mains examination marks, certain number of candidates are cleared for appearing in the personality test, right? This personality test usually is around 3 times, 2.5, 3 times the total number of vacancies. And what are these vacancies? These vacancies are called central services, right? Mainly 2 services, IAS and IPS, are all India services, and rest all services are central services, right? Central services का मतलब है कि when you clear these examination, you become a central government officer in a particular service. You can be a railway officer, you can be a post and telegraph officer, you can be a revenue officer, you can be any officer. And 2 services, IAS and IPS, these are all India services. The very nature of all India services is that you are serving in the state, but still आपके जो एम्प्लॉयर हैं या एम्प्लॉयर्स की जो मैक्सिमम राइट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं. सो यू आर बेसिकली सर्विंग इन यूपी, यू आर अ डिप्टी कलेक्टर और अ कलेक्टर और अ सीनियर पोजीशन ऑफिसर इन यूपी, बट स्टिल यूनियन गवर्नमेंट हैज सम कंट्रोल ओवर यू. आपका DOPT जो होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वो आपके ऊपर आपका कैडर कंट्रोल करता है. कहाँ से आती है सर्विसेज? जिन लोगों ने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी है, दे नो दीज आर कॉलोनियल सर्विसेज. जब ब्रिटिश यहाँ पहुँचे और इन्हें इस देश पर शासन करना था, तो देश पर शासन करने के प्रोसेस में उन्हें समझ में आ गया कि द सिस्टम हियर इज दैट यू नीड टू हैव अ डिस्ट्रिक्ट एज यूनिट, और डिस्ट्रिक्ट में आपको एक मालिक, एक राजा बैठा देना है. देश आज़ाद हो जाता है, बट वी कंटिन्यू विद दैट कॉलोनियल लीगेसी. And the result is we still have, earlier it used to be ICS, now it is IAS. The entire process suggests कि from the colonial times भारतीय लोगों के लिए, इंडियन लोगों के लिए, गांव में, गांव के पास के शहर में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही व्यक्ति सबसे ज़्यादा पावरफुल था, and that was the collector. आजकल किसी किसी जगह पे इसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, अलग अलग नाम हो सकते हैं, बट यूजुअली 2 नाम चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM और कलेक्टर. कलेक्टर बिकॉज प्राइमरीली ही वॉज अ रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर, तो उसका काम रेवेन्यू कलेक्ट करना था, इसलिए इट वॉज कलेक्टर. बट इट इज़ जस्ट टू से इट, अदरवाइज ही वॉज अ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. तो आप जब घर में वापस जाते हैं और आप सुनते हैं कि आपकी माँ या आपकी मौसी या आपके पड़ोसी कहते हैं बेटा कलेक्टर बनना है, तो ये कहाँ से आ रहा है? इट इज़ कमिंग फ्रॉम दैट कॉलोनियल लीगेसी वेयर वी हैव सीन द मोस्ट पावरफुल representation of the government is collector. But at the same time, it carries the same colonial legacy, जिसमें आप कलेक्टर को ऊपर की तरफ मुंह खोलकर क्यों देखते हैं? क्योंकि वो मालिक है और आप प्रजा हैं. ये कहाँ से आ रहा है माइंडसेट? ये उसी कॉलोनियल फेज से आ रहा है. दैट्स वाई whenever student ask me कि सर
मैं क्या करूं कि मैं अच्छा आईएएस बन जाऊं, जल्दी आईएएस बन जाऊं, क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, तो मैं उसी जगह रुकता हूं। रुको रुको भले मानस, रुक जाओ जरा, पहले ये बताओ कि तुम्हें आईएएस क्यों बनना है, ठीक है? एंड इंटरेस्टिंगली मोस्टली दे डू नॉट हैव एनी आंसर टू इट, बिकॉज काइंड ऑफ आंसर्स दे हैव इज स्ट्रेंज आंसर। सर मैं बचपन से यही चाहता था। मेरी नज़र में तो आपका बचपन अभी भी चल ही रहा है, लेकिन बचपन में, याद कीजिए यशपाल कमेटी रिपोर्ट फिर से, बचपन में बच्चे को क्या चाहना चाहिए? क्या बचपन में किसी को कलेक्टर बनने की इच्छा होनी चाहिए? इतने बोरिंग सा काम। एक बड़ी सी टेबल है, उसके पीछे आप बैठे हुए हैं, सफ़ेद तौलिया, गंदा नहीं साफ होता है तो वो तौलिया एक पीछे से टांगा हुआ है, आप उसके पास बैठे हुए हैं, सुबह बैठते हैं शाम को निकलते हैं। इसकी चाह किसी के मन में क्यों हो सकती है? और बच्चे के मन में क्यों होनी चाहिए? वाई शुड अ किड, यंग किड लाइक यू और यंगर देन यू, क्या बचपन में चाह होनी चाहिए? ईमानदारी से बताइए। आप तो इतने शानदार स्कूल में पढ़ते हैं, आपको तो अब तक क्लियर हो चुका होगा कि आपकी बचपन की चाह क्या होनी चाहिए। आपकी चाह होनी चाहिए आप तितलियों के पीछे भागें। आपकी चाह होनी चाहिए कि आपके पास एक छोटा सा घरौंदे जैसा घर हो जिसमें आप खेलें, आप कबड्डी खेलें, आप बैडमिंटन खेलें। पढ़ने का मन हो तो आप शानदार किताबें पढ़ें, ये मन होना चाहिए ना बचपन। परियां आपके बचपन का सपना होनी चाहिए। किस बेवकूफ का सपना कलेक्टर बनना होगा? एंड व्हाई? इट इज नॉट बिकॉज यू हैव लर्नड, it is because you refuse to de-learn. You getting my point? आप लोग एलुमनाई हैं, आप लोग यहाँ से निकले हैं, आपको मैं हड़का नहीं रहा हूँ, पीट नहीं रहा हूँ। आप लोग फालतू में इतना चल के आए धूप में, हम सोच के आए थे कि बताएंगे कैसे बनना, ये कह रहे मत बनो, राइट? बट जस्ट थिंक ऑफ इट, बचपन से मन था इज द बिगेस्ट फेलेसी। झूठ है, आसान भाषा है, झूठ है, क्योंकि आपका मन नहीं था। किसका मन था? पिताजी का था, पड़ोसी का था। पिताजी के किसी दोस्त का बेटा बन गया, वही शर्मा जी का बेटा यार, एंड दैट्स व्हाई यू डिसाइडेड। पिताजी को लगा कि मेरा बच्चा तो और ज़्यादा, उसने 2.5 लाख में से 200-400 लोग आप सेलेक्ट होते हैं, ऐसा एग्ज़ाम क्लियर किया था। जब वो बन सकता है तो ये भी बन सकता है, तो बेटा तू बनेगा। अब ये बेटा बेचारा मुंडी हिला के हाँ पापा बनूंगा, और ये इतनी बार पापा बनूंगा होता है कि उसको जल्दी जल्दी लगने लगता है कि वो वास्तव में चाहता था कि मैं आईएएस बनूंगा। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग इट्स अ बैड जॉब, इट्स अ वंडरफुल जॉब, बट टू बिगिन विद प्लीज फाइंड आउट व्हाई यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। दैट्स द प्राइमरी थिंग, एंड इट शुड नॉट बी द रीजन कि बचपन से मैं चाहता था, क्योंकि मैं बता रहा हूं बचपन से कोई नहीं चाहता, नहीं चाहना चाहिए। बचपन से तितलियां चाहनी चाहिए, बचपन से किताबें चाहिए, बचपन से खेलना चाहिए, बचपन से पढ़ना भी चाहिए, ये सब बचपन से मैं ये सब करने का मन होना चाहिए। कलेक्टर बनना बचपन से मन नहीं होना चाहिए। अगर है, और डिस्पाइट स्टडिंग इन विद्या ज्ञान, डिस्पाइट हैविंग दिस वंडरफुल एक्सपोजर यू हैव, if you could not de-learn that, then I'm sorry, my friends, teachers have failed. You should have de-learned that part कि ये हम बचपन से बनना चाहते थे. You should have more concrete reasons that why you want to become a civil servant. Clear? That is to begin with. And since I'm talking in this Vidya Gyan campus of Uttar Pradesh, most students are from UP, most. That's why I'm saying, I've been saying it many times, कि अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, अगर आप बिहार से आते हैं, अगर आप राजस्थान से आते हैं, these we called feudal states, इन जगहों से अगर आप आते हैं, तब तो you should ask yourself more than once, in fact more than twice, कि why you want to become a civil servant, because most likely the reason you want to become civil servant is not your free choice. It is usually induced into you because of the social construct from the society you are coming from. हम उन समाजों से आते हैं जिन सोसाइटीज़ में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो जरा सा ब्राइट होता है, अगर एक छोटा बच्चा है जो 4 साल में 2 का पहाड़ा सुना लेता है, तो बच्चे माँ बाप कहने शुरू करते हैं ये कलेक्टर बनेगा, which is in fact which is
Even for the mathematics, it is insult. Right? So, to begin with, what I'm asking is, please reconsider, re-evaluate that why you want to become a civil servant. And once you have arrived at a conclusion that it is because of the social construct, because of the social pressure, because you want to earn a reputation, because आपको किसी चाचा को, किसी ताऊ को, किसी नाना को दिखा देना है, then don't do it. But if you still believe that that is not the reason, it is what inner calling is. You have some independent choice, you have a free choice, and you still want to become a civil servant, then you should pursue that. Because after all, no doubt that civil services are one of the best career this country is still offering. Now comes that crucial part. मैं जब अपने एस्पिरेंट्स से बात करता हूँ, आई वॉज टॉकिंग अबाउट डेफ, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म. डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म वो फॉर्म होता है which every student who cleared mains examination have to fill, and it has all the details, right? It has detail where, what is your birthplace, right? What was your primary school, what is occupation of your father, everything, your entire life journey is there, right? For example, when you will write you will fill your detailed application form, you will mention that I studied in Vidya Gyan, I was an ex-club of Vidya Gyan, right? I was prefect, I was monitor, or I was Kabaddi team member, or whatever. You'll mention that. You'll have that space. And this space where we mention these things is called column 7. 7 has 7A, 7B, 7C, 7D, where you mention what are your achievements, what are the scholarships you got, what are the sports achievements you have, and things like that, right? When I interview a candidate, I very carefully look for two things. They too do the same. One is looking at the matrix of the school from which a person had studied, and then the column 7. जब पढ़ रहे थे तो बच्चे ने क्या क्या किया था. On the basis of the school wala matrix, I want to share my understanding. Usually there are 3 categories of students or schools from which the students are coming. I understand that you are in the Vidya Gyan, or you were in Vidya Gyan, the alumni, because you cleared a very difficult examination. This examination was conducted Penn State, maybe Penn Nation, right? Lakhs of students still appear for this, and you are among those selected 0.01 whatever percentage. When I was coming to it, the ILA ma'am actually very proudly shared this thing, that whatever students you'll be facing, they are the students who have cleared this difficult examination, which I understand why she was very proud of it. But ये जो 3 कैटेगरी के स्कूल कह रहा हूँ, उसमें से एक कैटेगरी के स्कूल वो हैं जैसे कि आप हैं. The Navodaya Vidyalayas, the Sainik schools, right? Good Kendriya Vidyalayas, right? That category of school. Your school is slightly different in a sense that it is not public funded. Government का पैसा नहीं आ रहा है, but still you are not paying it for it, right? You cleared the examination, and most of the time it is the organization that's paying for it. So it can be close to public funded, right? Because that money is also public money. ठीक है ना? Organization कहाँ से कमाता है? Public से ही कमाता है ना? उसी का एक शेयर CSR में रखना होता है. Right? So one category is this, जो बच्चे इन जगहों से आ रहे हैं. Second category is when the students are coming from the elite schools. कॉलेज में सेंट स्टीफन से पढ़े, स्कूल में DPS RK-पुरम से पढ़े, संस्कृति स्कूल से पढ़े, दून स्कूल से पढ़े, things like that, right? This is the privileged class, right? उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, अगर आप संस्कृति में नहीं उनके पिताजी एडमिशन दिला पाते तो DPS RK-पुरम दिला देते, DPS RK-पुरम में नहीं होता तो मथुरा रोड हो जाता, right? That was not the choice you had, right? You either had this Vidya Gyan if you are able to clear that examination, or आपको अपने मोहल्ले के स्कूल में पढ़ना पड़ता, ठीक है?
And the mohalla ka school is the third category. It can be a good school, it can be an average school, or it can be a school nobody know, right? ऐसा स्कूल हो सकता है जो आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपके डिस्ट्रिक्ट में तो सब जानते हैं उसको, और डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकलते तो आपको कहना पड़ता है मैं मॉडल बस्ती स्कूल से आया हूँ, इट्स अ वेरी गुड स्कूल, आपको खुद ही बताना पड़ता है इट्स अ वेरी गुड स्कूल बिकॉज नोबडी एल्स नो. ठीक है. ऑल दीज थ्री कैटेगरी ऑफ स्कूल कैरी देयर स्कूल विद देम. ये मजेदार बात है. ये स्कूल अब आपके 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 आपकी नर्व्स में, आपकी नसों में बहता है, रगों में बहता है. वैसे तो आप नहीं चाहेंगे, लेकिन आप चाहें भी तो इसे आप निकाल के बाहर नहीं फेंक सकते. नाउ इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर पर्सनैलिटी. मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अगर आप पेड़ देखते हैं ना, पेड़ में जो ट्री रिंग्स होते हैं, पता है ना, स्कूल के बच्चों बॉटनी में आपको शायद पढ़ाया होगा. स्कूल अगर आप किसी भी लकड़ी को देखें तो उसमें अगर पेड़ के तने को ऐसे काट दें हॉरिजॉन्टली तो उसमें ट्री रिंग्स बनेंगे. आप सब जानते हैं कि हर साल एक ट्री रिंग आता है. उस साल कैसी बारिश हुई, कैसा खाद मिली, कोई बीमारी हुई कि नहीं हुई, वो सब उस ट्री रिंग में दर्ज हो जाता है. एंड द ट्री कैन नॉट गेट रिड ऑफ इट. इट इज देयर फॉर ऑल टाइम्स टू कम. बहुत साल पहले 1993 में मैं नर्मदा वैली में था, नर्मदा जबलपुर के पास. वहाँ पर एक फॉसिल म्यूजियम है. फॉसिल आप समझते हैं, जीवाश्म फॉसिल. वहाँ पर ट्री के फॉसिल्स रखे हुए हैं, मिलियंस, कितना मतलब लाखों साल पुराने. एंड स्टिल दे हैड दोज ट्री रिंग्स. आप उस फॉसिल को देख के बता सकते हैं कि जब ये पेड़ था तो उस साल में, जिस साल में ये ट्री रिंग बना, तब बारिश कैसी हुई थी. ठीक है ना. सेम अप्लाइज टू यू. आप आईएएस बन जाएं, आप एंटरप्रेन्योर बन जाएं, आप हाउसवाइफ बने, व्हाटएवर, आपने जो विद्या ज्ञान के में 5-6 साल 7 साल जो बिताए, वो इनग्रेन्ड हो गए आपकी पर्सनालिटी में. ठीक है. एंड यू विल नेवर एवर फॉरगेट दैट. फॉरगेट तो भूल जाइए, आप छिपा भी नहीं सकते उसे. ठीक है. दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर पर्सनैलिटी. क्लियर. So similarly, all those schools are reflected in their personality. The Sanskriti wala carry the Sanskriti on his head. You carry your Vidya Gyan in your blood. Similarly, the model Basti guy, like me, I studied from MCD school in Bhajanpura, right? So I carry my school with me. Clear? And on the basis of these three categories, I want to tell you that yes, the school education you are getting is going to have impact on your personality that nobody can deny. The values you have learned here, the personality that's been groomed here will matter, probably will matter the most when you will be appearing in any examination, including civil services examination. Not just the personality test, even before the personality test when you are appearing in prelims and mains. भाई सुबह आप लोग, घंटी बजती है या जैसे भी मैसेज आता है 5 बजे योगा की क्लास में जाना है, चिढ़ते चिढ़ते जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हो ना, किलसते हुए कि बस वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ होता ये वाला, तो घर में मस्त सो रहा होता, कोई 5 बजे नहीं उठाता मुझे. राइट. वी ऑल, आई एम श्योर, आई मीन मुझे 5 बजे उठना पड़े मुझे भी बुरा लगेगा, बट एट द सेम टाइम नाउ इट विल बी इनग्रेन्ड इन योर पर्सनैलिटी. And when you will be preparing for civil services and you know that you have to study for 10 hours a day, then you will realize this 5 p.m. early morning wake up is being helpful, which is not available to that model Basti Bachcha. Right? Though there are some other privileges which others have. For example, the privilege the Sanskriti schools will have. They will not have to wake up at 4-5. उनके सारे काम को दूसरे लोग करेंगे, because obviously for the privileges they are having. So they will have more than 24 hours in a day, effectively, because they don't have to do anything. They only have to, quote unquote, prepare. So we carry with us the kind of privileges we earn, right, and the deprivations we face.